ایران کی اسرائیل کے خلاف مسلم بلاک بنانے کی تجویز، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر کا پاکستان کی مخلصانہ حمایت پر اظہار تشکر، کہا اسرائیل کے خلاف 12 روزہ جنگ میں پاکستان کی حمایت کبھی نہیں بھول سکتے۔ صہیونی حکومت مسلمانوں کی صفوں کو کمزور اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محسن نقوی نے ایرانی صدر کو حالیہ جنگ میں عظیم فتح پر مبارکباد دی۔ جنگ میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے کردار کو سراہا۔ آئی ایم ایف کا چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ دینے پر سخت تحفظات کا اظہار، حکومتی وضاحت مسترد کر دی۔ $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ، ذرائع کے مطابق حکومت نے موقف اختیار کیا تھا کہ چینی کی درآمد فوڈ ایمرجنسی کے تحت کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر حکومت کا چینی کی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور، چینی درآمد کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم، 1185 پوائنٹس اضافے کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا۔ انڈیکس پہلی بار 1,37,727 سے اوپر چلا گیا۔ اس وقت انڈیکس 1,37,100 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے بارش کے دوران کے الیکٹرک، ہیسکو سمیت بجلی سپلائی کمپنیز کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے بجلی سپلائی کمپنیوں کی نااہلی سے بارش کا پانی نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حیدرآباد میں بارش کے بعد ہیسکو کے فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی بند ہونے سے بارش کا پانی نکالنے میں مشکلات ہوئیں۔ شرجیل میمن نے کہا حیدرآباد کی انتظامیہ نے جنریٹرز کی مدد سے بارش کا پانی نکالا، شہر کے زیادہ تر علاقوں سے پانی نکالا جا چکا ہے۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں 2 گروپوں میں جھگڑا، فائرنگ کے دوران 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ مقتولین کی شناخت 12 سالہ عبدالقدیر اور 16 سالہ نادر بنگلانی کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اور ہندوتوا کی حامی مودی سرکار کے خطے میں مسلمان دشمنی بے نقاب ہو گئی۔ مودی اور گودی میڈیا مذہبی آڑ میں بنگلہ دیش کے معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی سازشیں کرنے میں مصروف۔ بنگلہ دیشی نجم تنظیم ریومر سکینر نے گودی میڈیا کا راز فاش کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گریٹ ہال چائنا آمد، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایس سی او وزرائے خارجہ نے چینی صدر سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے قیادت کی۔ چینی صدر نے ایس سی او کانفرنس میں شامل تمام وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ میں کرغزستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی، باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں، لاہور میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، متعدد علاقوں میں فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی غائب، حیدرآباد میں بھی بادل خوب برسے، بارش سے کئی فٹ پانی جمع، دکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، ریلوے پل کے نیچے گاڑیاں ڈوب گئیں، 350 فیڈر سٹرپ کر گئے، شہر تاریکی میں ڈوب گیا، تیز ہواؤں سے 132 kV کے 11 بجلی کے ٹاورز گرے، ٹنڈو والا یار اور ٹنڈو محمد خان میں بھی تیز بارش، اہم شاہراہیں زیر آب، بدین کی تحصیل ماتلی میں موسلادھار بارش، طوفانی ہواؤں کے باعث بل بورڈز اور کچے مکانات کی چھتیں گر گئیں، دیواریں گرنے سے 2 خواتین جان کی بازی ہار گئیں۔ پنجاب حکومت بارش کے بعد نکاسی آب میں ناکام، لاہور کے کئی علاقوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات، متعدد علاقوں میں بجلی غائب رہی، بارش کے باعث ٹرپ ہونے والے کئی فیڈرز تاحال بحال نہ ہو سکے۔ جیسے بارش ہوئی حیدرآباد میں پوری ایڈمنسٹریشن، میئر حیدرآباد، وہاں کے تمام نمائندے سب کے سب جو ہے لوگوں کو پانی نکالنے کے لیے اور اپنی مشینری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ جنریٹرز
ऑल्टरनेट रखे और जनरेटर्स के ज़रिए पानी निकाला गया। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इदारे की वो निभानी जो है वो चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक पानी निकल चुका है, कुछ लो लाइन एरियाज़ में भी है पानी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला पंपिंग के ज़रिए निकाला जा रहा है। हैदराबाद में हेस्को की नाअहली से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात हुई। हेस्को की बिजली बंद थी, इंतज़ामिया ने जनरेटर्स की मदद से बारिश का पानी निकाला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हैदराबाद के ज़्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा चुका। कोशिश है शहरियों को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। अगस्त सितंबर तक मज़ीद EV बसेस लेकर आएंगे। अगस्त में कराची में डबल डेकर बसें लाना चाहते हैं। कराची में BRT लाइन्स की अशद ज़रूरत है। कराची में BRT रेड लाइन पर तेज़ी से काम जारी है। मॉनसून बारिशों से मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 110 से ज़ायद हो गई। मरने वालों में आधी तादाद बच्चों की, मुतअद्दिद ख़वातीन भी शामिल। NDMA के मुताबिक 26 जून से 14 जुलाई तक सबसे बड़ा वाक़या सवात में पेश आया, जहां 13 सयाह सैलाबी रैले में बह गए। सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके हॉक्स बे के करीब तेज़ रफ्तार कार दीवार से टकरा गई। हादसे में एक खातून और 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी, हस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे कार के दीवार से टकराने के बाइस पेश आया। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 12 घंटे बाद भी बिजली की बहाल सप्लाई न हो सकी। कराची में पानी की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर हुई। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम मरम्मती काम में मसरूफ हैं। मरम्मत का काम अगले 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरम्मती काम के दौरान शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन अंदरूनी केबल फॉल्ट के बाइस पेश आया। अंदरूनी फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए 4:30 बजे सुबह राब्ता किया गया कि इलेक्ट्रिक साइड से पंपिंग स्टेशन को सप्लाई में रुकावट नहीं। सिंध में 21 लाख मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज घर बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध का ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। प्रोग्राम वालों लोगों को बाइज्जत ज़िंदगी की तरफ ला रहे हैं। ये रिहायशी प्रोग्राम सिंध के लोगों की ज़िंदगियों को बहाल कर रहा है। फ़ख्र है अपने वादे, रोटी, कपड़ा और मकान को अमली जामा पहना रहे हैं। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफ, बैरिस्टर गोहर मुतहरिक, शेख वकास अकरम और आलिया हमजा के दरमियान लफ्ज़ी नोकझोंक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने दोनों रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर का दोनों रहनुमाओं को टेलीफोन, कहा आपकी बयानबाजी से पार्टी की साख को नुकसान पहुँच रहा है, कोई मसला है तो मुझे बताएं। दोनों रहनुमाओं ने बयानबाजी ना करने की यकीन दहानी करा दी। आज भी कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। मौलाना अपनी बात पर कायम, कहा PTI की तल्ख और बद इखलाकी पर जवाब नहीं देना चाहता। PTI से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रख कर तल्खियों को दूर करना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की बात PTI के ख़िलाफ़ नहीं की। मैंने मशवरा दिया है कि सूबे में तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं। मैंने PTI के अंदर तब्दीली लाने की बात की है। PTI की हुकूमत कायम है और अदालत ने तस्लीम भी किया है। मज़ीद कहा मदारिस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती ज़ाहिर हो चुकी। रियासती इदारे दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से संजीदा नहीं। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए बड़ा इक़दाम। 1 जनवरी के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तहत ही इराक जा सकेंगे। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। वीज़े का इजरा 1 से 16 सफ़र तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस। ईरानी और इराकी वज़राए दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। रॉयल इंटरनेशनल एयर शो के लिए पाकिस्तान के JF-17 थंडर की धूम। पाकिस्तान का C-130 हर को लेस और
IL-78 तैयारा भी शो का हिस्सा होगा। भारत के किसी तैयारे को एयर शो में शामिल ही ना किया गया। RIA शो 18 से 20 जुलाई तक होगा। दुनिया भर से बेहतरीन तैयारे हिस्सा लेंगे। जोहरी मुज़ाकरात यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत हुए तो बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका और यूरोप पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी के मुशीर अली विलायती ने सरकारी खबर रसां एजेंसी एरेना से गुफ्तगू में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की शर्त अफजूदगी रोकना है, तो ऐसे मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी इस मौक़िफ़ की तौसीक़ करते हुए कहा कि ताहाल ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुमकिना मुलाकात के लिए तारीख़, वक्त या मकाम का तयन नहीं हुआ। गजा में सेहोनी फौज ने इंसानियत के परखचे उड़ा दिए। पानी के इंतजार में खड़े फ़लस्तीनी बच्चों पर फ़ज़ाई हमला, 6 बच्चों समेत 14 अफराद मौत की आगोश में चले गए। गजा में पानी के हुसूल के दौरान अब तक 700 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 112 मीठे पानी के मराकज़ को निशाना बनाया और 720 कुएँ तबाह किए, जिसके बाइस 12 लाख से ज़ायद अफराद पीने के साफ़ पानी से महरूम हो गए। इसराइल ने गजा के लिए ममनुआ अशिया की फहरिस्त में बुनियादी तिबी आलात भी शामिल कर दिए। जनरेटर्स और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स के लिए आर्जी खैमों के दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि हमास इन तिबी आलात को हथियार साजी के लिए इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए उन्हें गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। शाम के जनूबी सूबे अल सवेदा में 2 कबाइल के दरमियान फिरकावाराना मुसल्लह झड़पों में मरने वालों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। हुकाम के मुताबिक झड़पों में हलाक होने वालों में 80 से ज़ायद दरोस और 20 बुदो कबाइली शामिल हैं। रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए पैट्रियट मिसाइलों की सख्त ज़रूरत है। मजीद बोले, प्यूटन 50 रोज़ में अमन मुआहदे के लिए रजामंद ना हुए तो 100% टेरिफाइड करेंगे। रूसी सदर से सख्त नाखुश और मायूस हैं। प्यूटन ने बहुत से लोगों को धोखा दिया है। यूक्रेनी सदर का यूक्रेन की नई वज़ीर आज़म का ऐलान। ज़ेलेंस्की कहते हैं जंगज़दा मुल्क के लिए एक अहम सियासी तब्दीली के दौरान वज़ीर इक़्तिसादियात यूलिया स्वेरिडिको को वज़ीर आज़म बनने की सिफारिश की है। ये ऐलान रूसी हमले के 3.5 साल बाद हुकूमत में वसी तर रद्दोबदल का आगाज़ कर सकता है। जोहरी तवानाई के मुआयनाकारों के जूतों में जासूसी चिप्स छुपी हुई थी। ईरान ने आलमी एटमी एजेंसी के साथ ताउन को मुअत्तल करने की वजह बता दी। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन महमूद नवैयान ने इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास जासूसी के तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। मुआयनाकारों के जूतों से जासूसी की चिप्स मिली हैं।